Hello, good afternoon, students. My name is Hiral Raval. Today's date 28 September 2020, Monday. Standard 8th, subject Science. Chapter number 11, Force and Pressure. In previous lecture, we have studied force and a definition of force. A push or pull is called a force. Then we do activity 11.1. Okay. Then 11.2 forces are due to an interactions. इंटरेक्शंस के बारे में हमने देखा। ये जो डायग्राम है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज़ ये एक कार है, ओके। पीछे एक पर्सन खड़ा है, ऐसे ही खड़ा रहेगा तो कार को कोई प्रेशर नहीं लगेगा। जब वो पुश करेगा तो कार आगे जाती है, ओके। देन 11.3 ए हु इज़ पुशिंग होम, बी हु इज़ पुलिंग होम एंड हु इज़ पुलिंग होम, ओके। ये अलग अलग डायग्राम से हमें पता चलता है, ओके। देन इन दिस एंड वी स्टडीड द एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। व्हाट इज़ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस? सो हमने ये एक्टिविटी देखी थी बॉक्स की। चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friends to help you in pushing it in the same directions. Is it easier to move it now? Yes, है ना, हमारा फ्रेंड्स वही डायरेक्शंस में हमारे साथ जुड़ जाएगा, ओके। तो क्या होगा, हम उसको पुश कर पाएंगे। नेक्स्ट, पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड to push it from the opposite side. Does the object move? If it does not the directions in which it moves, can you guess which one of you is applying a larger force? Okay, दोनों एक साइड होंगे तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, अपोजिट साइड हो गए तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हमने टग और वॉन की ये जो है एक्टिविटी वो हमने देखी थी, है ना। हम स्कूल में खेलते हैं, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स डे होता है तभी टग एंड वार खेला जाता है। और नॉर्मली हमारा पीटी का जो लेक्चर होता है तब टीचर हमें टग एंड वॉर जो है वो हम खेलते हैं, ओके। देन in this video we have studied the exploring forces. Have you ever seen a game of tug of war? In this game, two teams pull at a rope in opposite directions. Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. कभी कभी जो होता है वो रोप हम सिंपली मूव नहीं कर सकते। Is it not similar to the situation shown in figure 11.3b? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. वो गेम जो है वो जीत जाता है, okay. What do this example suggest about the nature of a force? Forces applied on an object in the same direction add to one another. एक ही डायरेक्शन में फोर्स होगा तो वो ऐड होता जाएगा। Now recall what happened when you and your friend push the heavy box in the same directions. In activity 11.2 एक ही डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा और जो बॉक्स है वो आगे मूव करने लगेगा। If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. What did you observe in activity 11.2? When both of you were pushing the heavy box from opposite directions, does it mean that the net force on an object is zero if two forces acting on it in the opposite directions are equal? ओके, सिमिलर जो फोर्स होगा है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। अपोजिट साइड जो फोर्स होता है उसकी जो रिजल्टेंट इफेक्ट होती है वो हमें ज़ीरो मिलती है। हम लेफ़्ट साइड 5 न्यूटन लगाए, राइट साइड 5 न्यूटन लगाए तो हमें जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। सो वी लर्न दैट a force could be larger
और स्मॉलर देन द अदर। ओके, जो फोर्स है वो लार्जर होगा या तो स्मॉलर होगा अदर्स से। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। ऑल्सो इफ ई डायरेक्शंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस, उसकी इफेक्ट चेंज हो जाएगी। इन जनरल more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. ओके, एग्ज़ाम में आ सकता है। जनरल हम क्या कर सकते हैं? इन जनरल more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. Okay. Then 11.4, a force can change the state of motion. फोर्स जो होता है वो मोशन भी चेंज कर सकता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स ऑब्जेक्ट पे होगा तो क्या क्या होता है। तो हम एक्टिविटी 11.3 देखेंगे। उसके लिए take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop or a concrete floor. हमें उसको टेबल सरफेस पे या तो कंक्रीट फ्लोर पे रखना है। Now gently push the ball along the level surface, और फिर हमें बॉल को पुश करना है। फिगर 11.6, does the ball begin to move? बॉल मूव होता है। push the ball again while it is still moving, वो मूव होता रहता है। इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड्स, क्या उसकी स्पीड में चेंज आता है, वो हमें देखना है। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, हमें अपनी पाम को मूविंग बॉल के पीछे रखना है। रिमूव योर पाम as soon as the moving ball touches it, हमें क्या करना है, मूविंग बॉल को टच करना है। डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, क्या अपने पाम जो है वो हमने फोर्स अप्लाई किया उससे। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, अभी जो बॉल की स्पीड पे क्या उसकी इफ़ेक्ट होती है। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। हम बॉल को पुश करेंगे अपने पाम से तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, आप अपना जो हाथ है वो रख देते हो बॉल के ऊपर तो क्या होता है, वो रुक जाता है। ओके, ये डायग्राम दिखाया है। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, हमें ऐसी सिचुएशन को हमें देखना है। फॉर एग्जांपल, व्हाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल, हम फुटबॉल पे किक लगाते हैं। द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, प्लेयर का क्या करता है, अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट, उसको हिट कर नहीं करता है, बॉल पहले वो हिट करता है। द बॉल्स वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो, सबसे पहले बॉल ऐसे रेस्ट भी होता है तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स, अप्लाइज बॉल, सपोज गोल कीपर डाइव्स और जम्प्स अप टू सेव द गोल, गोल कीपर होता है वो डाइव्स करता है, जम्प्स करता है उसके ऊपर। बाय हिज एक्शंस द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, द फोर्स अप्लाइज बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, उसका जो स्कोर है वो सेव हो जाता है। इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू ज़ीरो, अभी सपोज गोलकीपर बॉल को टच करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। दिस ऑब्जर्वेशन suggest that a force applied on an object
may change its speed. है ना. दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करता है कि भाई दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इज स्पीड, उसकी स्पीड में हमने चेंज कर दिया, उसमें फोर्स अप्लाई किया. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, हम फोर्स अप्लाइड करते हैं ऑब्जेक्ट पे, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अरे राम भैला तू. This observation suggests that force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object is in the directions of its motions, the speed of the object increases. की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motions, then it results in a decrease in the speed of the object. वो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है. I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. Figure 11.7. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. हम टायर को पुश करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज क्यों होती है. To move a tire faster, it has to be pushed rapidly. है ना, टायर जो होती है उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है तो वो रैपिडली मूव पुश होने लगता है. पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स can only change the speed of an object. Let us find out. So student, we perform activity 11.4. Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3. Make the ball move by giving it a push. हम बॉल को पुश करते हैं. Now place the ruler from your geometry box. फिर geometry box का यूज़ करना है. In its path as shown in figure 11.8. In doing so, you would apply a force on the moving ball. आप moving ball जो force applied कर सकते हो. Does the ball continue to move in the same direction? है ना, बॉल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव हो सकता है. Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? वो रूलर से स्ट्राइक होता है. Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler such that it makes different angles to its path. Head to path. In each case, note your observations about the direction of motions of the ball after it strikes the ruler. वो रूलर से स्ट्राइक हो जाता है. 11.8. A ball set in motions by pushing it along a travel surface and the direction of motions of the ball after it strikes the ruler plays in its path. Okay, let us consider some more example. हम अलग और एग्जाम्पल देखते हैं. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates. ओके, धीरे से बॉल जो अप्लाई करते हैं टू मेक अ विनिंग मूव. समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड. कभी कभी बॉल अदर साइड चला जाता है. समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट. इन क्रिकेट, अ बैट्समैन plays his
or her shot by applying a force on the ball with the bat. कभी कभी क्या करता है बैट्समैन है फोर्स अप्लाई करता है ना बॉल पे. इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस. क्या उसमें कभी चेंज हो सकता है ना. डायरेक्शन कभी कभी क्या होता है बॉल्स ज़्यादा हिट्स होती है, हम उसका ऐसे एंगल से हम बॉल लगाते बॉल फेंकते हैं तो बैट्समैन को जजमेंट लेना पड़ता है ना. बॉल कोई भी साइड जा सकता है. इसके लिए तो क्रिकेट में सारे प्लेयर जो ग्राउंड होता है उसमें सब जगह जो है वो प्लेयर्स वो खड़े होते हैं विकेट लेने के लिए. कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड. आप उसका अलग और कोई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं तो देना है. ओके. अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शंस ऑफ मोशन और बोथ is described as a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motions of an object. Okay, हम उसका जो state है वो change कर सकते हैं. Then state of motion. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in motions. ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट में रहता है या तो मोशन में रहता है. बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन. डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स would always result in a change in the state of motion of the object. Let us find out. हम find करते हैं. It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. है ना. हमारा common experience से हम बता सकते हैं that many a time application of force does not result in a change in a state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. आप दीवार पे पुश करो है ना तो वो कोई दीवार पे कोई उसकी इफेक्ट होती है नहीं होती है. तो ये यूजलेस फोर्स है. हम खाली खाली दीवार को पुशअप करते रहते हैं. 11.5 फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज कर सकता है. एक्टिविटी 11.5 सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 of table 11.2 on page number 134 in which objects are not free to move. Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. हमें situations ऐसी create करनी है. You can also add similar situation using available material from your environment. Note your observation in column 4 and 5 of the table. हमें अपने observations भी note down करने हैं. Okay, what do you conclude from the observation noted on table 11.2? हम क्या conclude कर सकते हैं. टेबल 11.2 आगे आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ. This table 11.1 identify a force. And this is the table 11.2. ओके, आप देख सकते हो
अ लम्प ऑफ डफ ऑन अ प्लेट, हाउ टू अप्लाई फ्रोज, है ना। तो क्या करेंगे, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड, हमारे हाथ से नीचे करेंगे, पूरा डो तैयार है ना। DOUGH डो। एक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशंस में होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। ओके, देन यहाँ पे स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल के नीचे की सीट, तो बाय सीटिंग ऑन द सीट, हम सीट पर बैठेंगे तो क्या होगा, वो नीचे हो जाएगी प्रेशर से। देन अ रबर बैंड सस्पेंड फ्रॉम अ हुक, नेल फिक्स ऑन अ वॉल, by handling hanging weight और by pulling इट्स फ्री एंड, हम उसको खींचेंगे रबर को तो नीचे ही आएगा, है ना। देन अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स, दो ब्रिक्स के बीच में प्लास्टिक का हमने स्केल रखा है। बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, सेंटर पे स्केल को हम कोई वेट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्केल क्या हो जाएगी, स्केल जो है वो नीचे हो जाएगी, है ना, प्रेशर से नीचे हो जाएगी। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, इतना करते हैं आज के वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।